In this lecture of reproduction in organisms, chapter 1, we will discuss what is asexual reproduction. As you know, in asexual reproduction, there is involvement of a single parent with or without gamete formation. So in asexual reproduction, a single parent give rise to offspring or a progeny. So single parent is capable of producing offspring or a progeny. तो आप जानते हैं कि asexual reproduction में सिर्फ एक ही parent होता है, बराबर, वो offspring या तो progeny produce करने के लिए capable होता है. Because single parent is involved in a production of a progeny. This progeny or offspring are genetically and morphologically identical to parent and among themselves. तो मैं कहूंगा कि क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट से ही प्रोजेनी या तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है पेरेंट से और अपने सारे ऑफस्प्रिंग ग्रुप से. So I repeat, here there is a single parent capable of producing progeny or offspring, and progeny and parent are genetically identical to each other. Many times a word clones are used to denote themselves. बराबर, क्योंकि progeny और parent, offspring और parent genetically identical होते हैं, तो सारी जो progeny होती है, सारे जो offspring होते हैं, they are genetically identical to each other, and because of that they are referred as a clones. बराबर, जिसको हम क्या कहेंगे, clones कहेंगे. चलिए, तो asexual reproduction की अगर बात करें तो it is very common among unicellular organisms. Asexual reproduction is very common among unicellular organisms. It is very common in plants, even higher plants like angiosperm, so frequent asexual reproduction. But it is rare in higher animals, or I will say it is not found in higher animals, and it is almost restricted to lower category of animals. तो हम कहेंगे कि एनिमल किंगडम में ये रेयर होता है हायर एनिमल्स में, और ये रिस्ट्रिक्टेड होता है लोअर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में विद अ सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. जो एनिमल्स सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं इसमें ये होता है, लेकिन हायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले हायर एनिमल्स में इट इज नॉट फाउंड. तो asexual reproduction is common in unicellular organisms like protist, monera. It is common in plants but rare in higher animals and only restricted to lower category of animals with a simpler body organization. तो जो प्रोटिस्ट और मोनेरा होते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे अमीबा है, क्राइसोफाइट है, यूग्लिना है, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ प्रोटिस्ट. मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, तो इसमें ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सेल डिवीजन से ही होता है. तो हम कहेंगे कि unicellular organism like protist and monera, when undergo cell division, they give rise to daughter cells. This is a kind of a asexual reproduction. So here cell division is nothing but a asexual reproduction or a mode of a reproduction. तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया है जैसे, या तो अमीबा है, जब ये डिवीजन होता है इनका तो नए डॉटर सेल्स बनते हैं. तो यहाँ पे नई जनरेशन का अराइज होना, मतलब कि रिप्रोडक्शन होना, ये सेल डिवीजन से होता है. हम कहेंगे कि सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन दिस ऑर्गेनिजम्स. अब एक वर्ड यूज होता है बाइनरी फिशन. बराबर, एक वर्ड होता है बाइनरी फिशन. इन बाइनरी फिशन अ सिंगल सेल अंडरगोज द फिशन and give rise to two daughter cells. These two daughter cells then grow, mature and become adult. बराबर, तो बाइनरी फिशन में एक सिंगल सेल बीच में से डिवाइड होता है और डॉटर सेल्स को का ये जनरेशन करता है. डॉटर सेल्स धीरे धीरे साइज में ग्रो होते हैं और एडल्ट सेल जो पेरेंट सेल होता है उसकी साइज को ये अचीव करते हैं. तो इस मेथड को बाइनरी फिशन कहते हैं. बाइनरी फिशन इज कॉमन इन protists like amoeba, paramecium, and even it is common in bacteria. So in case of a binary fission, जो binary fission है, cell divides into two half, मतलब कि cell बीच में से divide होता है दो half में, and then
cell rapidly grow in size and become adult cell size. तो जो डॉटर सेल्स इस यहाँ पे बनते हैं ये रैपिडली ग्रो होते हैं और अपने एडल्ट पेरेंटियल सेल जैसी साइज को अचीव करते हैं. Now in case of a budding, there is unequal cell division. There is unequal cell division. A small daughter cell remain attached to a parental cell. A small dead daughter cell remain attached to a parental cell. It grow in size and eventually separated from a parent cell. तो बडिंग के अंदर एक अनइक्वल सेल डिवीजन होता है जिसमें जो स्मॉल डॉटर सेल जनरेट होता है वो अपने पेरेंटियल सेल से अटैच रहता है. धीरे धीरे ये साइज में ग्रो होता है और इवेंचुअली ये पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है और बाद में ग्रो होके एडल्ट साइज अचीव करता है. इट इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एक्चुअली yeast, and birds are also common in certain multicellular animals. तो birds multicellular animals में भी common होते हैं और जो ये bud हम कहते हैं ये bud का जो description दिया है it is common in unicellular organism like yeast. तो हम यहाँ पे कहेंगे in yeast cell division is unequal and small bud are produced that remain attached to the parental cell that eventually separated from the parental cell and grow as a new organism. Now, spores are thick-walled structure. Spores are thick-walled structures which are common in fungi as well as algae. बराबर. तो स्पोर्स क्या होते हैं? ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये कॉमन होते हैं, फंजाई में भी कॉमन होते हैं और आल्गे में भी कॉमन होते हैं. स्पोर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं लेकिन उसमें एक जू स्पोर होता है. ये मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर होता है. स्पेशली ये वाटर जैसे मीडियम में स्विम करने की कैपेसिटी possess करता है. तो जू स्पोर्स आर वेरी कॉमन अमॉन्ग फंजाई एज वेल एज आल्गे. स्पेशली एक्वेटिक हैबिटेट में जो रहते हैं उसमें ये कॉमन होता है और ये भी असेक्सुअली प्रोड्यूस होता है और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब कि ये स्विम करने की कैपेसिटी प्रोड्यूस करते हैं. अदर असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर बर्ड्स इन हाइड्रा, conidia type of spore in penicillium, and gamules in sponge are certain list of asexual reproducing structures found in other organisms. अगर हम इसके टेक्स्ट बुक की फिगर को थोड़ी बहुत देखें, बराबर, तो टेक्स्ट बुक की जो फिगर्स हैं इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें बाइनरी फिशन और बडिंग की फिगर दी हुई है. तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक की फिगर देख रहे हैं. देखो ये टेक्स्ट बुक के अंदर बाइनरी फिशन की फिगर है. तो पहले यहाँ पे बाइनरी फिशन देखते हैं जो अमीबा में होता है. तो यहाँ पे बाइनरी फिशन में बेसिकली क्या होता है कि देयर इज अ सेल डिवीजन काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर दिस न्यूक्लियस इज अंडरगोइंग कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियस के अंदर कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही होती है. अब सेल डिवाइड्स into two halves. यहाँ पे a cell is dividing into two halves. Now these two daughter cells are small size compared to adult cell. But then when they formed, then they grow and finally attain a size of a parent cell. तो हम यहाँ पे अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन बताते हैं, बीच में से डिवाइड होना मतलब कि बाइनरी फिशन. तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, जो ये रेड वन है ये न्यूक्लियस है, ये डुप्लीकेट हो रहा है मतलब इसका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, दो न्यूक्लियस बन रहे हैं और बाद में ये सेल बीच में से डिवाइड हो रहा है. अल्टीमेटली ये डॉटर सेल्स बन जाएंगे. यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो डॉटर सेल्स बनेंगे. अब ये डॉटर सेल स्मॉल साइज होते हैं इनिशियली, लेकिन फिर ये ग्रो होके पेरेंटियल सेल जैसी साइज को अचीव करते हैं. चलो यहाँ पे ये यीस्ट का सेल है जिसका हम बडिंग प्रोसेस बता रहे हैं. ये न्यूक्लियस है यीस्ट का जो कैरियोकाइनेसिस से डिवाइड हो रहा है. अब ये दो न्यूक्लियस बनाएगा. तो आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है. अब ये दो न्यूक्लियस बनाएगा. तो यहाँ पे ये जो सेल डिवीजन ये अनइक्वल टाइप का है. ये पेरेंटियल सेल एज इट इज रहेगा, उसकी साइज ऑलमोस्ट एज इट इज रहेगी और उसकी साइड में से सरफेस पे से एक बेबी डॉटर सेल ग्रो होगा. तो इसको हम बड कहेंगे. तो हम कहेंगे कि बड इज ग्रोइंग फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ पेरेंटियल सेल.
अब बड के अंदर की आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, अब धीरे धीरे बड की साइज इंक्रीज होगी और इवेंचुअली ये बड के जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है ये सेपरेट हो जाएगी और फिर बड ग्रो होके एडल्ट यीस्ट सेल जैसी साइज को अचीव करेगी। तो मैं बडिंग की प्रोसेस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये यीस्ट का सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसका यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब कि एक्चुअली डिवाइड हो रहा है सेल, अनइक्वल सेल डिवीजन होगा। ये एक स्मॉल साइज डॉटर सेल पेरेंट सेल से अटैच रहेगा, इसको बड कहेंगे। स्लोली बड विल ग्रो इन साइज एंड इवेंचुअली सेपरेट फ्रॉम अ यीस्ट पेरेंट सेल एंड देन would grow as a new yeast daughter cell and also grow in a size and will achieve a size of a parental yeast cell. चलो फिगर दूसरी फिगर्स जो दूसरे पेज पे दी हुई है, these are the Jew spore. You can see these are the flagellated Jew spore capable of a swimming. This is a conidiophore found in a penicillium as well as actually aspergillus like ascomycetes. एक फंजाई का क्लास है जिसको कहते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसके मेंबर्स होते हैं पेनिसिलियम और एस्परजिलस और इनके अंदर ये असेक्सुअल कोनिडिया टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इनको कोनिडियोस्पोर या तो कोनिडिया कहते हैं। ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो इजीली एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं और नए निश या तो नए हैबिटेट में जाके फिर ये डिवाइड होंगे, जर्मिनेट होंगे और नए पेनिसिलियम फंजाई को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्पोर्स है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये असेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज अ बड दैट इज प्रोड्यूस एट द साइड at the side of a hydra body surface. Hydra is a lower category animal and it can reproduce by the budding process. Sponges, which is also a category of a lower animal, it produces a gammules, which is a mode of a asexual reproduction in a sponges. So this was our discussion about asexual reproduction in certain organisms. In next lecture, we will discuss asexual or a vegetative reproduction in plants.